A very good evening, everyone. Welcome to another session on the Queen Mums and Kids, yeah, United Queens. And like always, we have something interesting again for you. What is that? That's that how to have a balance of health with wealth. I would like to start the talk with the important quote, and that the quote is from a famous motivational speaker. Some of you must have heard of Robin Sharma, who wrote the book The Monk Who Sold His Ferrari, a super hit book and millions of copies sold. सो रॉबिन शर्मा ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा अपनी टॉक में एक कोट शेयर किया है. वो क्या कहते हैं? When people are young, they spend their time in gaining wealth, and when they are old, they spend their whole wealth in gaining health. Wow. I repeat, when people are young, they spend their whole time in gaining wealth, and when they have wealth, they spend their whole time in gaining health. सो अल्टीमेटली वेल्थ और हेल्थ के खेल में हमारा लाइफ निकल जाता है और हमें समझ ही नहीं आता है कि व्हाट डू वी वांट. And that's our endeavor today. That's our effort today to bring a balance of health with wealth. अगर हम health और wealth का balance कर लें तो we can. So if we can keep a balance of health with wealth, then we can something do great for our life and the life of our loved ones. So what is that thing we need to do? How to create a balance? So let's look at this. And I'm going to share that if we have health, we can still enjoy life. But if we have wealth and no health, we cannot enjoy life. हमने सुना है ना कि बेड तो है बट नींद नहीं है, और पैसा तो है बट हम कुछ अपनी पसंद का खरीद नहीं सकते, खा नहीं सकते. तो हमने ऐसी वेल्थ को क्या करना है? अगर हमारे पास हेल्थ है तो हम वेल्थ को भी इंजॉय करते हैं. तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन टुडे, कि हम अपनी लाइफ में वेल्थ और हेल्थ का कैसे बैलेंस रखें ताकि हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो उसके लिए हम कुछ 5 सिंपल सी टेक्निक्स सीखेंगे. अगेन आई वुड लाइक टू शेयर, जितना सिंपल कोई चीज़ होता है लाइफ में उतना ही पावरफुल होता है. जो जितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है वो उतनी ही सारी प्रॉब्लम्स लेके आती है. तो सिंपल टेक्निक्स, सिंपल वेज, दे आर ऑलवेज द बेस्ट एंड दे गिव द बेस्ट रिजल्ट्स. So when it comes to health, we need to really think about it. Are we really looking for health, or we are looking for lean body? Maximum people in a desire to have a slim body or a lean body, they end up in going for such a diet which has some side effects on our health, and it brings our immunity level so low that no matter how hard we try, we are not able to regain that health. सो हमें पहले ये डिसाइड करना है कि हमें हेल्थ चाहिए कि हमें लीन बॉडी चाहिए. अगर हमें हेल्थ चाहिए तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को ही चेंज करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा सा डाइट मॉडिफिकेशन कर लें और थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें तो हमारा लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगा. और जो भी हम डाइट about fats in our body, what about roughage in our system, वो बहुत बुरे से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करता है. राइट. सो the points which we are going to discuss today, the 5 techniques which we are going to
discuss today. So उससे आपका health तो अच्छा होगा ही होगा. The extra benefit is that it will help you in getting wealth also. Above all, वो आपको अपनी बॉडी के साथ क्या चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो गाइड करेगा. हर एक की बॉडी डिफरेंट है, हर एक का लाइफस्टाइल डिफरेंट है. हम लोग क्या करते हैं कि दूसरों का वे, दूसरों का टेक्निक फॉलो करते हैं अपनी लाइफ पे, बट दैट्स नॉट द वे. His way, her way, that way is not my way. My way is different, my body is different, my lifestyle is different. Same way your body is different, your lifestyle is different. So you have to have your own way. अब हम अपना वे कैसे ढूंढे, हमें कैसे पता चले कि हमारा क्या वे है, that's what we are going to discuss today. जो 5 points आपके साथ हम discuss कर रहे हैं, the 5 techniques which we are going to discuss, they will help you in finding your own way. आपका अपना वे क्या है, जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे और आपके पास वेल्थ का भी अबंडेंस में सप्लाई हो. That's what we are going to discuss. So उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, which some of you may like, some of you will not like, because बहुत सारे लोगों के लिए टफ होता है. That is exercise. So we are not asking कि आपको 1 hour का वर्कआउट करना है, right? 1 घंटा वर्कआउट करना जरूरी नहीं है, but yes, at least 20 minutes if you can do in the morning and 20 minutes in the evening, that's enough. अब एक्सरसाइज करना क्या जरूरी है? पीपल जनरली से एक्सरसाइज करना है अपनी बॉडी को हेल्दी करने के लिए, बट वी हैव अनदर पॉइंट इन दैट. हमारे हिसाब से एक्सरसाइज इसलिए करना है क्योंकि बॉडी से टॉक्सिन्स, जर्म्स, बैक्टीरिया और whatever the dirty energies the body has, maybe because of food or the pollution or the environment, वो रिलीज होते हैं. अगर हम एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हैं तो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज ही नहीं होंगे, और जब बॉडी से टॉक्सिन्स नहीं रिलीज हो रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में डिजीज की फॉर्म में एक्यूमुलेट होंगे. इट्स लाइक एग्जाम्पल एक छोटा सा ही दूंगी मैं, कि अगर हम कुछ कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं, सपोज वी हैव ईटन फूड विच वाज बैडली कंटामिनेटेड, सो व्हाट इज बेस्ट? उसको वॉमिट करके बाहर निकालना बेटर है कि उसको जबरदस्ती मेडिसिन के थ्रू सप्रेस करना बेटर है? आई थिंक एवरीबडी विल करके बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकाल देना चाहिए, राइट? सेम इज हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स आ गए हैं, हम ऐसे पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ऐसा फूड खा रहे हैं जिसमें बहुत सारे स्प्रेज होते हैं, तो उसका उसका भी कहीं ना कहीं से साइड इफेक्ट है. सो उस डर्टी फूड को हमने कैसे निकालना है? उस डर्टी फूड के लिए हमें एक्सरसाइज करना जरूरी है. जब आप अपना एक्सरसाइज करते हैं, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि वो 40 मिनट्स और 1 आवर नहीं कर सकते, डिवाइडेड इनटू 2 सेट्स, 15 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 15 मिनट्स इन द इवनिंग, एंड यू विल सी कि 15 से ही आपकी बॉडी कितना री. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, all thumbs up to you to start with your exercise, and you will feel a lot of betterment. अलॉन्ग विद दैट, एक्सरसाइज करने से एक और बहुत बड़ा फायदा होता है. हम सबके बेस ऑफ द स्पाइन पे एक चक्रा होता है जिसका नाम मणिपुर चक्रा होता है, जिसको बेसिक चक्रा भी कहते हैं. सो वो बेसिक चक्रा बेसिकली हमारा रूट है हमारी बॉडी का, और उसके ऊपर हमारी बॉडी का स्टेमिना डिपेंड करता है, उसके ऊपर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डिपेंड करती है. तो अगर हमारा वो रूट स्ट्रॉन्ग है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो हम कोई भी बहुत से बड़े ऐसा बड़ा काम भी कर सकते हैं. वो बेसिक चक्रा स्ट्रॉन्ग, उसकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग कैसे होती है? वन रीजन इज एक्सरसाइज. और वही जो बेसिक चक्रा होता है, मणिपुर चक्रा होता है, वो हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी लाता है, बी इट फाइनेंसेस, बी इट हेल्थ, फिजिकल हेल्थ. That's the first point. So exercise आज से हम रेगुलर करेंगे, right? The second point, another thing, many people they look for glowy skin, they want that pimple free skin, they want that their face should not have any kind of scratches or marks. Exercise is the best way to glowy skin. Exercise is the best way. Then the second technique is to have a healthy body.
Again, youngsters generally do not like, and some of the people of our age even do not like, that is to have salads and fruits in your diet. अगर हम अपने दिन में 3 से 4 तरह के फ्रूट्स और सैलड्स नहीं खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में रफेज कहाँ से जा रहा है, हमारी बॉडी में फाइबर कहाँ से जा रहा है, फाइबर और रफेज क्या काम करता है। आई वुड लाइक यू ऑल टू डू सम वर्क, गूगल पे सर्च कीजिए। अगर बॉडी में रफेज नहीं है, अगर आपकी बॉडी के अंदर फाइबर ही नहीं है, तो बॉडी का क्लेंजिंग सिस्टम कैसे काम करेगा, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे सही करेगा, डाइजेस्ट करेगा। सो इन सब चीजों को सही करने के लिए हमें फ्रूट्स और सैलेड्स खाना जरूरी है। आप मैं आई रियली फील दैट रादर देन पॉपिंग द पिल्स, इट्स बेटर टू पॉप अ फ्रूट। एनी टाइम यू आर हंग्री, हैव फ्रूट। और फ्रूट्स खाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप उसको फ्रिज में चिल करके खाइए एंड द वे यू वांट टू हैव, बट इट्स नॉट एक्सक्यूज कि आप उसका फ्रूट क्रीम खा रहे हैं या आइसक्रीम में खा रहे हैं एंड यू कंसिडर इट्स अ फ्रूट। नो, इट्स नॉट अ फ्रूट। Fruit has to be eaten raw. The salad has to be eaten in a raw manner to get the maximum benefits. आपको इस चीज का ध्यान रखना है। एंड अगर आप ध्यान दें, आयुर्वेदा में भी कहा है, एक्यूपेंचर में भी कहा है कि जो मैक्सिमम प्रॉब्लम बॉडी में, हमारी लाइफ में, इट इज ऑफ आवर इनडाइजेशन। बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शनिंग सही नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को इतने बुरे से इफेक्ट करता है कि हमारा पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब होता है। तो हमने क्यों खेलना अपनी बॉडी के साथ? God has provided us with such a good system. I remember जब हम 6-7 स्टैंडर्ड में थे ना, स्कूल में हम सबको एक चार्ट दिया जाता था, साइंस में हेल्थ के ऊपर एक चैप्टर होता था पूरा हेल्दी बॉडी के ऊपर, उसमें लिखा होता था बैलेंस डाइट भूल क्यों जाते हैं? Why have we forgotten कि हमें उस चार्ट के हिसाब से बैलेंस डाइट लेना है? हम क्यों अपनी तरफ से डाइट बनाना लग जाते हैं? हमने 6 स्टैंडर्ड से पढ़ी है ये चीज, 5th 6th स्टैंडर्ड से, एंड ऑल ऑफ अ सडन वी हैव फॉरगॉटन। लेट्स गेट बैक टू व्हाट वी हैव स्टडीड in our school days. A balanced diet, a balanced diet is a balanced diet जिसमें आप अपना नॉर्मल फूड जो भी खा रहे हैं उसके साथ फ्रूट्स और सैलड्स को जरूर ऐड ऑन कर रहे हैं, टू हैव मोर रफेज इन योर सिस्टम। द थर्ड पॉइंट, again important, that is to have plenty of water. Now when we say plenty of water, many people say that we have enough of sharbats or we have enough of other drinks. So क्या फर्क पड़ता है? पानी पर्पस है, हम सबको पता है कि हमारी बॉडी से वाटर से बनी है, तो क्या हम उतना वाटर दे रहे हैं अपनी बॉडी को? फिर दूसरी बात आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स इसलिए हैं क्योंकि हमारी बॉडी एसिडिक है। 2 तरह की बॉडी होती है, या एसिडिक होती है या एल्कलाइन होती है। सो एसिडिक होती ही तब है जब उसके अंदर वाटर का जो क्वांटिटी है इज वेरी लेस। जितना अमाउंट में पानी चाहिए हम अपनी बॉडी को नहीं देते हैं। वी ड्रिंक वाटर एट ऑड टाइम्स, लाइक खाने के साथ पानी पी रहे हैं, और रात को पानी कम पीना चाहिए, हम तब पानी बहुत ज्यादा। अर्ली मॉर्निंग टी से अपना डे शुरू कर रहे हैं, लाइक हमने पूरा सिस्टम ही खराब किया हुआ है। So अगर हम if we start our day with 3 to 4 glasses of water and then we continue, make sure that we have 8 to 10 glasses of water, the body definitely shifts to alkaline, it becomes better. और वो अपने आप पानी हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स, जर्म्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। अलॉन्ग विद दैट हमारी जो ब्यूटीफुल सी किडनीज होती हैं उनका फंक्शनिंग सही रखता है। अब आप देखेंगे जो लोग पानी पीते हैं अपना बैलेंस्ड अमाउंट में, दे डू नॉट लूज द टेम्पर इजीली। उनका कहीं ना कहीं अपना गुस्सा आता है तो दे लर्न हाउ टू बैलेंस ऑल्सो, राइट? हमें अपने किडनीज का सही फंक्शन, अपनी बॉडी में बॉडी को एल्कलाइन रखने के लिए पानी को भी सही अमाउंट में लेना चाहिए। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, राइट? बट हम क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं?
ask yourself why. हमें पता है हमें पानी पीना चाहिए, बट हम क्यों नहीं पी रहे हैं? वट आर वी वेटिंग फॉर? क्या हम वेट कर रहे हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएं, 1000 रुपीज का अपना फाइल बनाएं और डॉक्टर से ये सुन के आए कि आपको पानी पीना है, आपकी बॉडी में पानी का कमी है? Why can't we start having water on a regular basis? And then the fourth point is, yeah, again very important point, जो हम सब नहीं कर पा रहे हैं आजकल, that is spend time with nature. हमें नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। जो कुदरत है परमात्मा ने बनाई है, बर्ड्स हैं, ट्रीज हैं, इनमें बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर होती है। क्यों? क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं ये सारा प्राणा करते हैं, फ्रेश एनर्जी एयर से, वाटर से, राइट, एंड दे रिलीज इनफ ऑफ ऑक्सीजन। सो जब डे टाइम में, इवनिंग टाइम में भी, बिफोर सनसेट, if we sit near the plants, if we sit near the trees and just sit and enjoy being with the trees and listen to the birds chirping, a lot of healing happens for our body. अगर मैं आप सबसे पूछूं तो just ask yourself, हम पूरे दिन में क्या 10 मिनट भी नेचर के साथ स्पेंड करते हैं? क्या हमारे पास 10 मिनट हैं कि हम सिर्फ पेड़ पौधों के पास बैठें और बर्ड्स का चर्पिंग सुने? How many of you get up with the beautiful sounds of the birds outside? हम सबको पता है सुबह सुबह 5 बजे चिड़िया ची ची करती है, बट क्या हम उस चिड़िया की आवाज को सुन के do we feel happy in the morning? Wow, the bird is chirping for me, me to get up. वैल्यू करना है, उसको relish करना है, उसको अप्रिशिएट करना है। और अनदर बेनिफिट नेचर में रहने का क्या होता है, हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसका काम क्या है? पूरे नर्व्स हमारी पूरी बॉडी का फंक्शनिंग करते हैं। द नर्व्स दे गाइड कि कौन सी जगह पे क्या कमांड जाना है बॉडी को, है ना, ब्रेन में नर्व सेल्स बताते हैं। सो वो जो नर्वस सिस्टम है वो स्ट्रांग बनता है व्हेन वी स्पेंड टाइम विद नेचर। Our nerves, they are in proper condition and they work well if we spend time in nature. So we need to be sure that we spend at least 10 minutes being in the nature. Now during the lockdown, I cannot go in the gardens or the parks outside, but we all have plants in our house. We can sit and spend 10 to 15 minutes just with the plants. And you will see that when once we start sitting with the plants, they communicate, they also transfer a lot of positive energy. So from today onwards, make sure that you spend at least 10 minutes. This 10 minutes is enough. If you want to spend more than 10 minutes, you enjoy being with the plants, with the birds, and with the trees. It's wonderful, all the way wonderful. And to mix exercise with the nature is the best, is that you can walk barefoot, in the grass. Even you can make it a habit to have your evening tea or coffee being in the nature. That will really help you in keeping your nervous system strong. उस समय हमें शायद नहीं पता चलेगा, but slowly it really works. And then the fifth point is that, before I move on to the fifth point, I would like to recall and revise the 4 points. 4 very simple techniques, हम सबको पता है, हम सब जानते हैं उनको, जिससे हमारा हेल्थ और वेल्थ अच्छा जाता है। उसमें फर्स्ट टेक्निक है, दैट इज एक्सरसाइज। हमें एक्सरसाइज करना है। हमसे रेगुलर 30 मिनट्स नहीं होता है, तो 15 मिनट्स में कर सकते हैं। मॉर्निंग 15 मिनट्स, इवनिंग 15 मिनट्स, अपने घर में ही कीजिए, कैसा भी कीजिए। एंड देन द एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी से जितना भी टॉक्सिन है, वेस्ट है, जर्म्स है, वो निकलता है। स्किन बिकम्स हेल्दी एंड ग्लोइंग। And then the second thing is that we need to add fruits and salads in our system. हमें कहीं ना कहीं फ्रूट और सैलड को ऐड ऑन करने की जरूरत है। And then the third is that plenty of water.
जब भी टाइम मिलता है, जितना पानी पिएंगे उतना ज़्यादा अच्छा हमारे थॉट्स आते हैं। एंड आई रिमेम्बर सिस्टर शिवानी हैज वेरी ब्यूटीफुली सेड कि आप जब भी पानी पीते हैं उसको भी चार्ज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पानी पीने से पहले जस्ट से दैट ब्लेस इट विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस एंड हेल्दी। When you say this, bless it with lots of love, bless the water with lots of love, peace, healthy energy, and then drink it, you will feel the taste of water has changed. I remember just few days back, all of a sudden, like my body was feeling a little tired and weak, weather ki wajah se there was no electricity and it was really hot, and no AC. So I had to do a lot of work that day. So after work for 1 or 2 hours, my body felt really tired. So it just clicked my mind that I heard once Sister Shivani said कि पानी को पीना है तो उसको चार्ज करके पी लीजिए. So I just said to water, power, power, power. Power bola pani ko, and I had it. And within 10 minutes, I felt, oh wow, this water a lot of power. इतना बोल that, yeah, it's wonderful. So हम इसके ऊपर ध्यान दें कि हम जब पानी पी रहे हैं तो उसको फोकस करके उसको पॉजिटिव थॉट्स देके पिए, और फिर देख वही पानी, but the taste is going to be much much better, right? And when we drink a lot of water and we eat fruits and salads, alkaline और acidic body का balance होता है. अगर हमारी बहुत ज़्यादा अच्छे से body alkaline है तो diseases जल्दी नहीं आते हैं. Maximum diseases they enter our system just because of acid in our system. So we need to have balance, right? And then पानी पी रहे हैं तो अपने आप आपकी बॉडी से किडनीज फ्लश आउट करती हैं टॉक्सिन्स और जर्म्स, और सिस्टम सही रहता है, टाइम लगती है, एवरीथिंग गोज इन अ बैलेंस्ड वे. एंड देन द लास्ट ऑफ ऑल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको हेल्थ के साथ वेल्थ चाहिए तो हमें मेडिटेशन करना जरूरी है. मेडिटेशन क्यों करना है? नो, हर तरफ मेडिटेशन मेडिटेशन कहा जाता है, बट क्यों करना है? Share the story of Gautam Buddha, Lord Gautam Buddha, when he did not attain Buddhahood. तो उनको सब लोग सिद्धार्थ के नाम से जानते थे. तो उन्होंने एक बारी देखा कि अपने फादर को बोला, किंग को देर के लिए बाहर घूमने जाने दो. के फादर ने बोला ओके गो आउट, आप जाइए घूम के आइए. तो जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं किंगडम से बाहर ही नहीं निकला हूँ, तो किंग ने जाने दिया. और सिद्धार्थ जब बाहर जाके एक पेड़ के नीचे बैठे तो वो क्या देखते हैं कि बहुत सुंदर सा एक इंसान कार्टव्हील लेके जा रहा है ना, वो जो खेतों में वो कार्ट चलाते होते हैं. तो जैसे ही कार्ट व्हील निकली तो उसमें से कुछ कीड़े निकले मिट्टी के बीच में से, और वो घूम रहे थे. तो कि सिद्धार्थ बहुत खुश होके देख रहा है, प्रिंस सिद्धार्थ, कि वाओ नो कीड़े कितने खूबसूरत लग रहे हैं. तो तभी वो देखते हैं कि फ्रॉग आया, डड्डू आया, दैट फ्रॉग एट दोस इंसेक्ट्स. And after the frog ate, then there was this bird which came down and ate the frog. And then some other animal came and ate the bird. And then Siddharth thought that, oh, there is so much of suffering in life. एक छोटा इंसान को बड़ा इंसान खा रहा है, छोटे जानवर को बड़ा जानवर खा. सो हर एक जीव अपने आप को बचाने में लगा है. तो क्या यही हमारी लाइफ है? हम हर समय अपने आप को सेव करने में ही लगे हैं कि इसके बियॉन्ड भी कुछ है इंसान के लिए? क्या हमारी लाइफ में कोई और पर्पस भी है? तो एकदम से उन्होंने आंख बंद करी और पेड़ के नीचे वहीं बैठ गए. और उनको क्या नजर आना शुरू हुआ कि उनको मेडिटेशन करने की जरूरत है. फिर उन्होंने अपने आप से पूछा कि मुझे मेडिटेशन क्यों करना है. तो तभी एक विलेजर आता है और वो कहता है कि हमारे पास सब कुछ है, पैसा भी है, काम भी है, हम सब कुछ कर पा रहे हैं, मगर एक अंदरूनी खुशी नहीं है.
जो भी पा रहे हैं उसमें सेटिस्फेक्शन तो प्रिंस है। और आज के टाइम में मेडिटेशन करना क्यों जरूरी है। एंड देन फाइनली प्रिंस सिद्धार्थ लेफ्ट द किंगडम और उन्होंने मेडिटेशन का रास्ता शुरू किया। वी ऑल डू नॉट हैव टू लीव आवर हाउसेस, हम अपने घर बैठे ही मेडिटेशन कर सकते हैं। और मेडिटेशन करना ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 घंटा मेडिटेशन करना है। इवन 5 मिनट्स यू कैन स्पेयर फॉर योर मेडिटेशन। बट आपका एक एक मिनट भी मेडिटेशन के लिए आपकी लाइफ को और ब्यूटीफुल बनाता है। व्हाट आई फील इज दैट, जो मैंने इनिशियली आप सब लोगों को कहा था कि हर एक की लाइफ डिफरेंट है, हर एक की बॉडी डिफरेंट है, हर एक का लाइफस्टाइल डिफरेंट है, हर एक की इम्यूनिटी डिफरेंट है। बट हमें नहीं पता कि हमारा बॉडी कैसी है, तो हम दूसरों को देख के उनकी बात, सपोज हम सोच कोई डाइट चार्ट फॉलो कर रहा है, हम भी वही डाइट चार्ट फॉलो करते हैं। वो हमारी बॉडी के लिए है कि नहीं है हमें नहीं पता, बट हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। अल्टीमेटली किसी को डाइट चार्ट सूट करता है और किसी को नहीं सूट करता। इफ यू नो योर बॉडी टाइप, तो आप उस तरह का अपनी बॉडी के लिए प्रैक्टिस शेड्यूल बना सकते हैं। और वो अपनी बॉडी के जानने के लिए आपको अंदर झांकना पड़ेगा। एंड दैट इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल थ्रू मेडिटेशन। Without meditation, all these things are not possible. Another thing is that meditation एक और बहुत बड़ा काम करती है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 7 years तक ग्रो करता है, डेवलप होता है। तो वो 7 years तक जब डेवलप हो रहा होता है तो उसमें सराउंडिंग से बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स इकट्ठे कर रहा होता है। जो हमारी सोसाइटी है या हमारा ब्रिंगिंग अप है, अगर हमने बहुत सारा नेगेटिविटी एक्यूमुलेट किया है तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है और उसी की वजह से हमारा लाइफ मूव ऑन करता है। अब आप सोचिए कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अगर यही बिठाया है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती लाइफ में, आई कैन नॉट डू इट, तो आप कितना भी एफर्ट करें आप फिर पीछे चले जाएंगे। अब आपको फाइट करना है अपने सबकॉन्शियस माइंड से ऊपर उठने के लिए, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। जो हमारा माइंड है विच इज लाइक अ कप इज फिल्ड विद वट एवर इज द पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, उसको जब तक एम्प्टी नहीं करेंगे वी कैन नॉट मूव अहेड इन आवर लाइफ। And to empty those past negative experiences so that we can enjoy the bliss and the present, we need to meditate. Meditation is the best way. And अगर आप एक डॉक्यूमेंट्री आई है नेटफ्लिक्स पे, आप लोग देख सकते हैं, तो जस्ट वॉच दैट, दैट्स बाय द नेम ऑफ हील, राइट। हील के नाम से डॉक्यूमेंट्री आई है, उसको देखिए। उसमें यही बताया है कि ये अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप कैसे कैसे कितने बड़े बड़े डिजीजेस क्योर कर लेते हैं। रिसेंटली आई केम अक्रॉस अ गर्ल हु सेड दैट उसका बचपन से टॉन्सिल था, शी कुड नॉट ईट एंड ड्रिंक एनी, वो आइसक्रीम तक नहीं खा सकती। जस्ट विद रेगुलर मेडिटेशन उसका टॉन्सिल अपने आप ही ठीक हो गया। दैट्स द पावर ऑफ मेडिटेशन। अगर हम ऐसे मैजिक चीजें वो हमें बिलीव करते हैं तो वो पावर सिर्फ सिर्फ मेडिटेशन में है, राइट। And if you want to know more, we are going to practice meditation. एक क्विक वाली मेडिटेशन अभी हम ग्रुप पे करेंगे, बट अगर आप मेडिटेशन को और सिंसियरली करना चाहते हैं, यू कैन विजिट अवर ऑफिस, दैट्स एट 308 शहीद उधम सिंह नगर, it's near फुटबॉल चौक। एंड इफ यू वांट टू नो मोर डिटेल्स आप आस्था से ले सकते हैं अबाउट आवर सेंटर्स, विजिट कीजिए। वी डू नॉट for meditation, anybody can come, and everybody is welcome to come and do the meditation. But हम यही कहूंगी कि हम किस चीज की वेट कर रहे हैं। what are we waiting for? Are we waiting for some disease or some problem to enter our life? Then we will start with the meditation. फिर तो मेडिटेशन नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बूढ़े होके मेडिटेशन करेंगे। बूढ़े होके तो हम सिर्फ दवाई खाते हैं। फिर मेडिटेशन को अगर यंग एज से शुरू करेंगे तो आप फिर बूढ़े नहीं होंगे। वी ऑलवेज रिमेन यंग, दैट्स द मैजिक ऑफ मेडिटेशन। So let's start with the meditation when we are healthy and young, so that we remain young till we are alive. That's one of the secrets of having a balanced, healthy, wealthy life.
सो वेल्थ कैसे आनी है, कहाँ से लानी है, कौन सा काम करें, विच विल ब्रिंग प्रॉफिट्स, it will come to you if you are meditating regularly. All you need to do is that make a routine to start with the meditation. So एक छोटा सा meditation हम अभी करेंगे, right? And let's practice that and देखते हैं कि हमें कैसा feel होता है उस meditation से, right? I hope you all are ready for that meditation. So we'll do a quick exercise for that. Let's start with the eye rotation. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Eyes को rotate कर रहे हैं हम, right? Next, we need to rotate it left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Neck हम side to side move करेंगे. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Up down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. अपर बॉडी को हम राइट और लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे हल्का सा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So just be relaxed. Sit in a very comfortable position. Keep your back straight and keep your eyes closed. So meditation only for 15 minutes. You are going to experience something wonderful, beautiful. Make sure that for 15 minutes nobody disturbs you, right? Close your eyes and gently smile. We call this meditation as Twin Hearts meditation. We also call it as date with God. You are going on a date with God in this Twin Hearts meditation. And through this meditation, your 2 chakras are going to be activated and they're going to be strong. So we start the meditation with the short prayer to the Supreme Being, whose divine Father, Mother, our beloved and respected teacher, Grandmaster Chokok Sui, his Guru Lord Mahaguruji Mailing, all the holy gurus, holy masters, holy angels, healing angels, spiritual helpers, archangels, Guru Nanak Dev Ji, Guru Gobind Singh Ji, and all the great ones. We humbly invoke for your divine guidance, help, protection, and blessing in order to experience oneness, bliss, and illumination. We thank you with full faith. I request everyone to keep a gentle smile throughout. If we are happy that we are going to experience oneness with God, yes, we will be able to experience. Just be aware of the center of your heart. There is a chakra which is called as heart chakra. अपने सेंटर ऑफ द चेस्ट की ओर फोकस कीजिए. वहाँ पे एक चक्रा है जिसको हम हार्ट चक्रा कहते हैं, हृदय चक्र कहते हैं. जैसे ही हम उसको फोकस करके उसकी अपनी जिंदगी का एक खूबसूरत पल याद करते हैं, वो इस तरह खुलता है और वो ऐसा फ्लावर होना शुरू हो जाता है. थिंक ऑफ अ हैप्पी मोमेंट ऑफ योर लाइफ. अपनी जिंदगी का एक ऐसा पल याद कीजिए जो आप चाहते जिंदगी में दोबारा आ जाए.
या फिर आपका कोई ड्रीम है, आप चाहते हैं वो पूरा हो जाए. Just think of that happy moment and gently smile at your heart chakra and say to your heart, I love you, I really value you. Thank you मेरा हार्ट सही से फंक्शन करने के लिए. अब अपने क्राउन चक्रा के ऊपर फोकस करके, आपका क्राउन चक्रा सिर के ऊपर होता है, इस तरह से खुलता है. जैसे ही हम उसके ऊपर फोकस करते हैं वो पहले बंद होता है एंड देन इट ऑल्सो ओपन्स एंड इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, और वो इस तरह से रोटेट करना शुरू करता है. जैसे ही हमारा चक्रा खुलता है हमारी इंट्यूटिव पावर्स बढ़नी शुरू हो जाती है. सो क्राउन चक्रा के ऊपर फोकस करके कहिए, जस्ट यू कैन टच एंड से दैट आई लव यू क्राउन चक्रा, आई वैल्यू यू, थैंक यू फॉर वर्किंग सो वेल. अब आप अपने हाथ धीरे से ऊपर उठाएं, रेज टू द चेस्ट लेवल, अर्थ इन फ्रंट ऑफ यू. धरती को एक छोटी सी बॉल के रूप में, एक छोटी सी बॉल के रूप में अपने सामने रखिए, और हम प्रेयर ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी की एक प्रेयर बोलेंगे. जो असीसी के संत हैं फ्रांसिस, उनकी हम एक प्रेयर बोलने जा रहे हैं, और धीरे धीरे आप मेरे पीछे मन में दोहराइए और अपने हाथों को ब्लेसिंग पोजीशन में रखिए और इमेजिन कीजिए उसे बहुत ब्यूटीफुल पिंक धरती पे रहने वाले सब जीव जंतुओं के लिए जा रही है. हम भी उसी धरती का पार्ट हैं, और धरती जो एक छोटी सी बॉल के रूप में है उस पे जा रही है ब्यूटीफुल पिंक कलर एनर्जी. लाइट इज गोइंग टू द अर्थ. एंड रिपीट आफ्टर मी साइलेंटली. Lord, make me an instrument of your peace. Imagine that lots of peace energy going to each and every being on the earth. Where there is hatred, let me sow love. Bless each and every being on earth with love. May my soul be blessed with divine love. Feel the pink energy coming out from your hands going to Mother Earth. Where there is injury, pardon. May every person, every being be blessed with divine forgiveness. May my soul be blessed with forgiveness. I forgive all the ones who have hurt me and I also ask for forgiveness. मैं उन सब लोगों को माफ करती हूँ जिन लोगों ने मुझे दुख पहुंचाया है, और अगर मैंने भी किसी को दुख पहुंचाया है तो हे परमात्मा मुझे भी माफी का दान दे. Where there is despair, hope, doubt, faith. जहाँ कहीं भी मेरी लाइफ में बहुत सारी शंका है, निराशा है, उसको आशा में बदल दीजिए. अगर किसी भी चीज की कमी है, हे परमात्मा मेरे अंदर इतना विश्वास उत्पन्न कर दो कि आपकी कृपा से जो भी वो भी दूर हो रही है. Every being be blessed with divine reconciliation, with divine faith. May my soul be blessed with divine faith. Where there is darkness, light. जहाँ कहीं भी हमारी जिंदगी में अंधेरा है, अंधेरा किस चीज का, हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस हैं, हमारी जो नॉलेज है वो एक सीमा तक बंधी हुई है, हम बहुत सारी जगहों में अपनी सोच को छोटा करके बैठे हैं. हे परमात्मा अपनी रोशनी से हर एक जीव, हर एक प्राणी की जिंदगी में खूब सारी रोशनी भर दो. Each and every being's life be blessed with divine light. Every person, every with knowledge, wisdom. Where there is sadness, joy. हर एक प्राणी, हर एक जीव की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां हो. Especially in the life of the people who are depressed,
जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, निराश हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हो। अब आप अपने क्राउन चक्रा से पे फोकस करते हुए धरती को फिर से इमेजिन कीजिए। From the center of the heart of God, let every person, every being be blessed with loving kindness, with great joy, happiness. आपके तरफ से आती हुई जो रोशनी है प्रेम की, सभी की जिंदगी में बहुत सारा प्यार लाए, बहुत सारी खुशियां लाए। With understanding, with peace, with harmony, goodwill and the will to do good. हम एक दूसरे को समझ पाए, जो भी कर्म करें एक दूसरे की भलाई के लिए करें, अपनी भलाई के लिए करें। Now be aware of the crown and your heart chakra both, दोनों को अवेयर होते हुए अपने सामने इमेजिन कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपके हाथों से गोल्डन कलर की एनर्जी निकल के धरती पे जा रही है। From the center of the heart of God, let every person, every being be blessed with loving kindness, with great joy and happiness. हे परमात्मा, अपनी शक्ति से हर एक की जिंदगी में खूब सारी प्रसिद्धि, तरक्की, रिद्धि सिद्धि सब भर दो। सबकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां हो। And every being be blessed with inner healing, physical healing, with divine bliss, divine oneness, divine blessings be to all. सबकी जिंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हो। अपने हाथों को धीरे से नीचे कीजिए, अपने क्राउन चक्रा पे फोकस कीजिए और इमेजिन कीजिए कि एक चमकीला सितारा है आपके क्राउन चक्रा पे। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लाइट है, ज्योत चल रही है आपके सिर के ऊपर और अपनी आंख बंद करके उसी को देखने की कोशिश कीजिए। अपनी आंखें रखिए। हम 9 ओम चैंट करने जा रहे हैं, 9 बारी हम ओम का जाप कर रहे हैं। इससे आपका ऑरा, इससे आपका चक्रा, इससे आपके अंदर से कोई भी नेगेटिव डर्टी एनर्जी है वो फ्लश आउट हो रही है, बाहर निकल रही है। आप मेरे पीछे मन ही मन ओम का जाप कीजिए और एक ओम से लेकर दूसरे ओम के बीच में कुछ 5 सेकंड का गैप है, हम उस ज्योत को देखने की कोशिश।
Oh. Just be aware of your crown chakra. आप अपना फोकस उस लाइट की ओर कीजिए and let go. Slowly, gently, come back to your body. Come back. Move your fingers, move your toes.